everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 7th of June और अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं. मैं बस रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, नहाना धोना वगैरह सब हो गया मेरा. I just have to go downstairs, so I thought I might as well start with today's vlog also, and I might as well record the the intro. बट टुडे व्हाट्स हैपनिंग इज कि अभी डिसाइडेड नहीं है कि खाना क्या बनेगा, तो नीचे जाके एक बार मैं देखूंगी क्या बनाना है. बट या दैट इज़ व्हाट इज़ द सिनेरियो. तो मेरे लिए क्या है, कल जो मैंने मटर पनीर बनाया था तो वो ऑलरेडी रखा हुआ है और थोड़ी सी टिंडे की सब्ज़ी भी रखी हुई है, तो वो मेरे लिए तो हो जाएगा. अब बाकी सब क्या बनाएंगे, मतलब सबको क्या खाना है उस हिसाब से देख लेंगे, बना लेंगे जो भी होगा. सो या लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड प्रिपेयर लंच. 2 hours later. 11:15 right now and I'm just back into my room. I need to get done with a little bit of editing work of the week vlog, and this one is going to be an interesting, and it's a very long vlog. अच्छा खासा 35 minutes का vlog है because there is a lot of things that I have tried to show you guys in this vlog, so you will have to stay tuned for that. I just have a little bit of last minute editings that is left, and then I am going to upload the vlog. तो mostly 2-3 बजे तक, I think 3 बजे तक कैसे भी करके लाइव हो जाना चाहिए. 3 नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा, बट आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बॉल पार्ट कि 3 बजे तक एनी हाउ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मिनट एडिट्स मतलब सिर्फ टेक्स्ट वगैरह डालने, बाकी क्लिप एडिटिंग्स वगैरह जो है एवरीथिंग हैज बीन डन. सो या आई विल गेट दैट डन, अपलोड इट एंड देन लेट यू गाइस नो अबाउट इट. 2 hours later. It's 1:15 right now, as you can see in the time of the laptop, and I was actually surfing through JioCinema to see what can I watch, and I came across this. And I'm not a horror movie kind of girl, but when this movie had released, उस time पे ना बहुत hype create हुई थी that it's very nice and it's filled with horror and stuff like that, and I've been wanting to watch this since a while. तो अभी क्योंकि मैंने देखा that it has come on JioCinema, मुझे नहीं पता ये कब से है, but I just came across this, so I will watch and then I will give you guys an update about exactly how this is. I did watch the first part, which was Evil Dead, and वो बहुत disgusting थी. Now let's see how this is. This is the title scene that actually comes after the first 5 minutes of the movie. It's just been 5 minutes into the movies, just the first 5 minutes into the movie, and I'm already thinking of stopping to watch this. But I know I will eventually continue watching, but I'm just telling you, first 5 minutes, मतलब इन लोगों ने क्या है ना कि क्या हुआ वो first 5 minutes में बता दिया. अब बाकी I think they are going to tell, I'm assuming they are going to tell, मतलब वो बाकी की exactly इस situation तक कैसे पहुंचे is I think what they are going to show. ये इस situation तक कैसे आए. But the first 5 minutes are disgusting. मतलब it's that kind, you know, so it's that jump scare. I'm so glad I'm watching this in the afternoon and not at night, because I'm dead scared of horror movies. I cannot watch. I either want somebody along with me, or else I will watch, if I'm watching alone, I'll watch it in the afternoon, so that by night, you know, those thoughts are out of my mind. And even then, रात में मैं हनुमान चालीसा सुन के सोती हूँ. But I wanted to watch this movie is only the reason why I'm watching this. Otherwise, I wouldn't have started watching it. Anyway, I'm going to stop blabbering and continue watching. 2 hours later. It's 3:30 right now and I am just done watching the movie. मैं actually थोड़ी देर के लिए मैंने बीच में pause भी कर दी थी movie को, क्योंकि I was uploading the week vlog, the Monday to Thursday वाला vlog. वो upload हो चुका है, the link of which is going to be up here in the eye for you guys to go and check it out. But yes, it's a very disgusting movie. It's not scary, it's just disgusting on
a completely different level. मतलब if you are somebody who cannot tolerate blood or something like that, या फिर एकदम disgusts वाली feel आती है किसी भी चीज़ को लेकर, don't watch it. You might end up puking. I almost had a jerk. इतनी disgusting है. So it's very bad. It's very 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 disgusting. It's not scary in any level at all. मतलब बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक scary नहीं है. But yes, and now I am going to sit and watch something else. आज गुल्लक भी release हो गई है finally. तो I might watch that, not right now, in the night when Sagar comes home. Tab I'm going to sit and watch that because he also wants to watch it. Yesterday only he was asking कि release हो गई क्या गुल्लक, and I was like no, it's not yet released. Forget about that. अभी I'm going to sit and watch something. कुछ तो भी देखूंगी, probably Friends शायद से. I'm not sure. Trust me when I say this, I'm not sure. पर कुछ तो भी तो बैठकर देखूंगी सही में. So yeah, but about Evil Dead Rise, it's very disgusting. A few moments later. First baarish of the season is here. Later that night. It's 8 o'clock right now और मैं अभी हॉस्टल जा रही हूँ. नीचे मैं करीबन 6:45 6:50 इश आ गई थी. उसके बाद में एक्चुअली क्या है ना, ये लाइट कहाँ की जल रही सागर? अच्छा, ये इसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है उसमें. ठीक है, लगा नहीं ढंग से. बेल्ट लगाना. तो मैं नीचे अराउंड 6:45 6:50 इश के आसपास आ गई थी. उसके बाद क्या है कि ये जो प्राणी है ये इनके छोटे भाई के साथ जा रहे हैं पार्टी करने. तो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम भी घर पे पार्टी करेंगे. तो बाहर से खाना आया है इसलिए मैं फ्री हूँ. तो इसलिए अभी ये हॉस्टल जा रहे थे तो मैं इनके साथ जा रही हूँ. वहाँ पे थोड़ा काम है, जो वॉशिंग मशीन वगैरह जो लेनी थी. तो वहाँ पे क्या नेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है और नेटवर्क का भी थोड़ा सा इशू है. तो इसलिए मैं वहाँ नहीं देख पाई थी कुछ भी. तो फिर मैंने यहाँ पे आके देखा, रिव्यूज़ वगैरह देखे जो मशीन मम्मी ने शॉर्टलिस्ट करी है एंड रिव्यूज़ आर गुड. सो अभी मैं मम्मी से बात करने जा रही हूँ. वैसे तो मैंने फ़ोन पे बात कर ली उनसे, बट अभी मैं बात करने जा रही हूँ कि क्या करना है, उसका फाइनल कर दें, क्या ऑर्डर कर दूँ क्या मैं, एंड ऑल ऑफ दैट. सो या ये महाशय भी जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि 1-2 दिन पहले जब मैं गई थी तो मम्मी मुझे बोल रही थी इसको भी लेकर आया साथ में. इधर उधर भाग रहा था ये, तो इसके मैंने टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया. अब ये कहीं कूद के नहीं जाएगा. आई एम गोइंग बैक होम अर्ली टुडे. ये है हॉस्टल जहाँ पे मैं आई थी. आई एम गोइंग बैक होम अर्ली बिकॉज सागर को बहुत लेट हो जाता वापस आने में. सो ही इज़ ड्रॉपिंग मी बैक होम. Later. It's 9 o'clock and I am back home. मैं 1 घंटे में ही वापस आ गई. एंड मैं अपना खाना भी जो है वो ऊपर ही ले आई हूँ. पापा खा चुके हैं, ये खाकर आएंगे, तो इसलिए मैं ऊपर ही ले आई अपना खाना. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड वॉच गुल्लक. मैं इनके साथ देखने वाली थी, बट द थिंग इज कि नहीं पता कि कितनी बजे आएंगे, क्योंकि अभी तो ये मेरे को जस्ट ड्रॉप करके और निकले हैं. अब वो वहाँ जाएंगे, सबके साथ बैठेंगे, करेंगे, बातें होएगी एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसलिए अब कितना टाइम लगेगा पता नहीं. इन्होंने मेरे को कम से कम 2 घंटे का तो बोला ही है कि कम से कम 2 घंटे तो कहीं नहीं. तो कम से कम 2 घंटे मतलब 11 बजेगी. तो फिर 11 बजे अगर मैं चालू करूँगी तो मैं कब खत्म करूँगी उस सीरीज को? बिकॉज मेरा यही है, अगर मेरे को कुछ पसंद आता है ना तो आई बिंज वॉच दैट, लाइक रिलीजियसली बिंज वॉच, वो वाला सीन है. तो इसलिए इनको जब भी देखना होगा आई विल री वॉच इट विथ हिम, बट अभी आई एम स्टार्टिंग टू वॉच इट. किसका आ सकता है? नावे में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेगा हमारे पापा. बनी है ये विष्णु अवतार नरसिम्हा के भक्त और हमें बना रही है हिरण्यकश्यप. ना भी चीरेंगी हमारी. The next day. Enjoying my morning coffee. मैं भी सब्जी का मसाला बना रही थी और मिर्ची के हाथ लग गए पूरे मुंह के ऊपर, स्पेशली इस साइड पे. तो आइस ऑल्सो दाल चावल बन रही हैं. दाल के लिए मसाला है, दाल बॉईल कर लिया मैंने, और ये चावल के लिए पानी बॉईल हो रहा है. और इसी का मसाला बनाते वक्त जो है मैंने मिर्ची अपने मुंह पर डाल ली, मतलब मिर्ची के हाथ लगा लिए. एंड दिस आइस इज़ नाउ व्हाट आई एम अप्लाइंग ऑन माई फेस. One hour later. It's 11:30 right now and I'm back into my room. मुझे रूम में आए हुए करीबन 15-20 मिनट हो गए हैं. एंड आई टुक दोज 15-20 मिनट्स टू सेटल डाउन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है. कल पहली बारिश हुई है इस सीज़न की, मॉनसून की बेसिकली. एंड
पहली कुछ बारिश में क्या होता है कि धरती को ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जैसे ही पानी पड़ता है ना, वो फ्यूम्स निकलते हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है। और वही हो रहा है अभी, इतना ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है कि 2 मिनट किचन में खड़े रहो, पूरे ऊपर से नीचे लेके नीचे तक ऐसे भीग जाता है जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो ऊपर, और वही हो रहा है अभी। तो मुझे 15-20 मिनट्स लगे थोड़ा सा सेटल डाउन होने के लिए, एंड देन आई थॉट आई विल अपडेट यू गाइस अबाउट इट। आज ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई, क्योंकि सबके लिए दाल चावल बने हैं, तो इसलिए जो है थोड़ा आराम से मैं फ्री हो गई, बिकॉज दाल चावल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तरफ दाल चढ़ा दो, एक तरफ चावल चढ़ा दो, और थोड़ा मसाले के लिए दूसरी तरफ मतलब एक और स्टोव पे मसाला चढ़ा दो। तो वो एक चीज़ हुई, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गई आज। एंड अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि मुझे एक ब्रांड ने काफ़ी दिनों से एक प्रोडक्ट भेजा हुआ है, तो मुझे उसकी रील शूट करनी है। HK वाइटल्स का है, कोलेजन का पाउडर है, तो उसका मुझे रील शूट करना है, तो वो मैं करने वाली हूँ अभी। और उसके अलावा आई एम थिंकिंग ऑफ शूटिंग अ Q&A ऑल्सो। मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक वो डाला था स्टिकर, सेइंग दैट आई हैवंट डन अ Q&A सिंस अ वाइल एंड लेट्स शूट एंड स्टफ। तो मैं उसको शूट तो अभी कर लूँगी, बट मैं उसको वेंसडे को अपलोड करूँगी, बिकॉज इफ़ आई हैव एनी एक्स्ट्रा वीडियोज़ लाइक दिस, मैंने वेंसडे का स्लॉट जो है अपने लिए खाली छोड़ा है, जिससे क्या है कि जो मैं मंडे को वीकेंड ब्लॉग अपलोड करती हूँ, उसके बाद ट्यूसडे का दिन मिल जाए उस वीकेंड ब्लॉग को परफॉर्म करने के लिए, और फिर वेंसडे को मैं एक और वीडियो डाल दूँ जिसके लिए थर्सडे का दिन मिल जाए उसको परफॉर्म करने के लिए, देन फ्राइडे को तो फिर जो वीक वाला ब्लॉग फ्राइडे को जाता है वो तो जाता ही है। तो ऐसे एक दिन छोड़ के एक दिन का गैप भी हो जाएगा, एकदम रेगुलर वीडियोस भी नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैंने वो वाला जो चीज़ है वो वेंसडे के लिए छोड़ा हुआ है, और इसी रीज़न की वजह से बेसिकली मैंने जो डेली व्लॉग्स है वो बंद कर दिए थे, सो दैट आप लोगों को जो है अच्छे से टाइम मिल जाए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, इसलिए। बट येस, वीक की 2 वीडियोस तो व्लॉग्स के रूप में जाती ही हैं। बीच में अगर शॉर्ट्स वगैरह कुछ होता है तो देन आई अपलोड दैट। इफ़ इट इज़ अ ब्रांड कोलैबोरेशन तो वो ब्रांड के डेडलाइंस के हिसाब से आई अपलोड इट, एंड या दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आई जस्ट हैव टू शूट वन ऑफ दैट, एंड अगर मेरे में थोड़ी एनर्जी बची देन आई माइट शूट द Q&A ऑल्सो। A few hours later. आई वॉज शूटिंग द BTS ऑफ दिस, एंड जैसे मैंने इस कैमरे को लगाया, इसमें चार्ज की दिक्कत थी, बैटरी वॉज नॉट चार्ज्ड, बट आई एम डन विथ माई वर्क एंड Oreo is sleeping right there. 15 minutes later. It's 5:20 right now and I am going to the hostel. I'm holding my laptop in my hand because अभी सागर का कॉल आया कि लैपटॉप लेके यहाँ पे आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कुछ काम है, तो he's come to pick me up and I am going to go. मैंने लिपस्टिक इसलिए लगा रखी है क्योंकि मैंने एक रील शूट करी थी, तो इस वजह से ये लिपस्टिक लगी हुई है। Later that night. This disaster named बड़े मियाँ छोटे मियाँ is on Netflix. Because I'm the best. What else? इतनी गंदी एक्टिंग कर रहा है ना टाइगर श्रॉफ। Dynamic on. Day 3. So today is the 9th of June और अभी सुबह के 8:50 हो रहे हैं। I'm doing my skincare. I'm done with bathing. Everything is done. And मैंने टोनर लगा लिया, by the way. I'm applying moisturizer. This is the Pond's Light Moisturizer. And honestly speaking, let me tell you one thing. I'm very frustrated with something and I just want to vent it out to you guys and I want to let you guys know also. So what happened is कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक हॉस्टल है यहाँ पे, एक्चुअली 2 है, पर एक है जिसको हम नया नया वापस से सेटअप कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, जिस पे मैं भी जनरली जाती रहती हूँ, द कृष्णा रेसिडेंसी दैट्स इन कुनारी। तो उसका क्या है सीन कि वहाँ पे ना हमने उसको लीज पे दे रखा था एक आदमी को, तो उससे हमने लीज वापस ले ली, एंड जैसे ही हमने उससे लीज वापस ली तो उसने जो है जो भी उसका सामान था जो उसने लगवाया था, जैसे इंटरनेट कनेक्शन वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट, वो उसने निकाल लिया वहाँ से। ना ऑब्वियसली विदाउट वाईफाई थिंग्स के नॉट फंक्शन इन अभी का टाइम, मतलब आपको वाईफाई चाहिए ही चाहिए, बिना उसके आपका काम नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो ड्यू टू दैट रीज़न हम लोग वाईफाई के नेटवर्क्स चेक कर रहे थे
कि क्या लगवाएं एंड वी कंक्लूडेड कि हम लोग एयरटेल का लगवाते हैं, बिकॉज यहाँ का जो लोकल है रेडिनेट वो वाला आ नहीं रहा था। मतलब पता नहीं क्या था जो हमारे एरिया में लगाता है, मतलब जिसने हमारे यहाँ पे लगाया था उसने तो यही चीज बोली थी, बोले भैया अगर मैं होता वहाँ पे तो अभी तक, क्योंकि इन लोगों ने क्या है हर टेक्नीशियन के लिए इन लोगों ने एरियाज डिवाइड कर रखे, तो बोले अगर मैं होता वहाँ पे, मेरा एरिया नहीं है वो, तो मैं तो अभी तक लगा चुका होता और सारा प्रोसेस भी कंप्लीट कर चुका होता। अब हम लोग उनके पीछे जो है 15 दिन तक भाग रहे थे एंड स्टूडेंट्स हैड स्टार्टेड कमिंग। हम लोगों को कैमराज भी एक्टिव करने थे, क्योंकि बिना वाईफाई के कैमराज भी एक्टिव नहीं होंगे। तो वो सारा सीन चल रहा था, तो इस वजह से जो है हम कुछ कर ही नहीं पाए किसी भी चीज़ को लेकर, कुछ कर नहीं पा रहे थे किसी भी चीज़ को लेकर। सो देन वी डिसाइडेड कि यार एयरटेल पे जाते हैं, क्योंकि जियो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, तो हम लोग एयरटेल पे जाते हैं। ठीक है, हमने लगवाया। तो पहले तो क्या उसकी स्पीड का इशू आ रहा था, बिकॉज उस एजेंट ने भी ये चीज़ बोली कि नहीं 40 Mbps बहुत रहेगा और स्पीड डिवाइड हो जाती है तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऑनेस्टली जैसे बच्चे आने लगे और मुझे इस चीज़ का पता है कि स्पीड डिवाइड होती है तो फ़र्क पड़ता है। कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, हर डिवाइस के अगर आपने 40 Mbps का लगवाया है और अगर 40 डिवाइस आ गए तो उस पर सिर्फ 1 Mbps की स्पीड आएगी, तो वो कितना स्लो चलेगा आप खुद सोचो। तो मतलब ये एक एस्टिमेट मैं बता रही हूँ कि वो कितना स्लो चलेगा। तो वो चीज़ हुई, तो पहले तो हमने उसको स्पीड अपडेट करवाई उसकी, बिकॉज उसकी स्पीड का इशू आ रहा था। फिर उसके बाद में उसके सर्वर का इशू आने लगा, तो 1-2 दिन तो एयरटेल का जेन्युइनली सर्वर डाउन था। फिर उसके बाद 5 जून को मैंने एयरटेल में कंप्लेंट रेज करी कि सो एंड सो इज़ द प्रॉब्लम एंड आई वांट समबडी टू कम हियर एंड विजिट। ठीक है, nobody came. They said कि आपका obviously everybody says कि next 24 hours में there will be a visit. We waited the whole day for the 5th and the 6th. 5th का I think दिन में करी होगी मैंने, but 5th and 6th पूरा हम लोग वेट कर रहे थे. Nobody came. Then again on 7th I called them up and they said कि आपका जो ये टिकट है ये क्लोज हो चुका है। मैंने कहा मैं यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं हॉस्टल पे, तो कैसे क्लोज हुआ? I cross-checked with Sagar कि कोई आया क्या? He was like, no, nobody came. Then I told them, I was like, nobody came. How did you resolve this ticket? कोई आया ही नहीं, किसी ने विजिट ही नहीं करी। विजिट करी हो और भले ही से उसने सोल्यूशन ना किया और टिकट रिजॉल्व कर दिया हो, तो एक वो हो जाता है कि यार वो आया था पर उसने रिजॉल्व नहीं किया, पर फिर भी उसने रिजॉल्व। पर यहाँ तो साइट विजिट ही नहीं हुई किसी टेक्नीशियन से, किसी इंजीनियर से। सो हाउ आर यू सेइंग दिस कि जो टिकट है वो रिजॉल्व हो गया है? देन उसके बाद में वी हैड द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द टेक्नीशियन. On 7th of June, I called them up again and they sent me all of this, and then they didn't raise another ticket for me at all. एंड मैंने 7th को भी टेक्नीशियन को डायरेक्टली कॉल किया था कि अगर आप आ सकते हो तो आप आ जाओ। ही इज़ लाइक हाँ मैं आ रहा हूँ। देन 7th को 2-3 बार मैंने कॉल किया था बेसिकली टेक्नीशियन को, एंड ही सेड कि हाँ मैं आ रहा हूँ। वो चीज़ हो गई। मैंने कहा वो आ ही रहा है अभी तक। येस्टरडे देन बिफोर कॉलिंग इनटू द एयरटेल द कस्टमर केयर, आई कॉल्ड अप द टेक्नीशियन कि अगर ये बोल देता है कि हाँ मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो मैं फिर उसके बाद जो है कुछ मतलब एयरटेल में फिर मैं क्यों कॉल करूँ। बट एज सून एज ही पिक्ड अप द कॉल, ही आस्क्ड मी कि हाँ जी मैम आप कहाँ से बोल रहे हो। आई सेड कि मैं कृष्णा रेसिडेंसी से बोल रही हूँ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई सेड द एड्रेस एंड एवरीथिंग, एंड एज सून एज ही हर्ड द एड्रेस, he disconnected the call into my face. मतलब he did not have the courtesy to pick my call the other 2 times I called him after that. The audacity of this man. मतलब we are taking service from you and this is the kind of service that you and your technicians are providing Airtel. What the hell is happening? So I got very furious and then I called up the customer care. I started shouting on them. I was like, what is this kind of behavior? Your people, your executives are not filing my ticket. Somebody is coming and resolving the ticket and nobody is making a site visit. What the hell is happening here? फिर उसके बाद में yesterday with Airtel, I was on call for 31 minutes. For 31 minutes I was on call. I was like, कुछ भी हो जाए, these people are going to find a solution for me today. I was very adamant on the fact कि अगर इन लोगों ने आज मेरा कनेक्शन नहीं सही करवाया तो या तो आप इसको सही करवा दो या फिर इसको प्लीज़ डिस्कनेक्ट करके जो भी पैसे होंगे वो वापस कर दो।
तो पहले इन लोगों ने ना मेरा कॉल जो है वो 3-4 बार ट्रांसफ़र किया। 3-4 बार ट्रांसफ़र करने के बाद में जो लास्ट वाला बंदा था, ही वॉज द पर्सन हु न्यू एवरीथिंग एंड ही वॉज द गाय हु एक्चुअली गेव मी ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उससे पहले के जितने भी, मैंने पहले एग्जीक्यूटिव से बात करी, फिर उसके सुपरवाइजर से बात करी, फिर उसके सुपरवाइजर से बात करी है, और फिर उसके बाद एक अलग टीम से बात करी। मतलब इमेजिन 4 times आई हैड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड आई हैड गॉटन सो फ्रस्ट्रेटेड। सिर्फ उसी एक चीज़ से मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि यार ये क्या है, मतलब 4 बार अलग अलग, कांट योर टीम ब्रीफ यू दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट्स हैपनिंग। फिर उसके बाद द लास्ट पर्सन, आई थिंक हिज नेम वाज विनोद और समथिंग, ही टोल्ड मी कि मैम आप मुझे, आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक प्लीज़ डिस्कनेक्ट कर दीजिए यार, क्या मुझसे ना अब नहीं हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग आउट ऑफ माई हैंड, आई कैन नॉट। इससे अच्छा तो मैं किसी और नेटवर्क को लगवा लेती आपके नेटवर्क की जगह। मैंने फिर ये भी डायलॉग मारा था कि इसलिए लोग बाग जो है ना जियो की तरफ भाग रहे हैं, बिकॉज देयर कस्टमर सर्विस इज टॉप नॉच एंड लिटरली इट्स टॉप नॉच। जो तलवंडी वाला हमारा हॉस्टल है ना, हमारे वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, हम उसको कॉल करते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर टेक्नीशियन का कॉल आ जाता है हमारे पास एंड ही मेक्स अ विजिट इन द नेक्स्ट 2 hours। लिटरली ही डज दैट। मतलब इतने टेक्नीशियंस उन लोगों ने एक ही एरिया को अलॉट कर रखे हैं कि वो टाइम स्लॉट वाला इशू रहता ही नहीं है। जो जैसे फ्री हुआ उसने वैसे रीच आउट किया एंड वेरी, मतलब मैं अभी सिर्फ एक इंक्वायरी कर रही थी जियो पे टू नो कि इस एरिया में जियो के क्या सीन चल रहे हैं, क्योंकि पहले इस एरिया में जियो नहीं था, तो कि क्या है उसका सीन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि जैसे ही मैंने 1 दिन पहले उसका वो किया, सुबह 5 बजे तो मेरे पास टेक्नीशियन के नंबर के साथ मैसेज आ गया और 9 बजे आई हैड अ कॉल फ्रॉम द टेक्नीशियन कि मैम किस एरिया में आना है। तो आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक कि मैं सिर्फ इंक्वायरी कर रही थी। सो इट्स लाइक आपकी हो गई क्या इंक्वायरी, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए? दिस इज द काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस दैट वन एक्सपेक्ट्स व्हेन दे आर ऑप्टिंग फॉर योर नेटवर्क और व्हेन दे आर ऑप्टिंग फॉर योर सर्विसेज। बट एयरटेल फॉर सम रीजन जस्ट डू नॉट वांट टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस और सिर्फ पैसे लेने हैं। Then after that what happened is, so I was, let's come back, मैं बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गई, but yes, let's come back. So lastly what happened is that the last guy, the Vinod guy, I was very adamant with him कि मुझे कैसे भी करके इस कनेक्शन को बस डिस्कनेक्ट कराना है, because बहुत ज़्यादा हो चुका है अब, it's getting out of my way now. So I was very adamant of the fact कि आप तो इसको डिस्कनेक्ट करो और जो भी पैसा बच रहा है अकाउंट में उसको प्लीज़ आप रिफंड कर दो। एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैम प्लीज़ आप मुझे 2 घंटे दे दो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज 7:30 इन द इवनिंग। आई वाज लाइक 7:30 हो रहे हैं, आपके जितने भी प्रीवियस टीम्स थी सबने मेरे को ये चीज़ बोली है दैट नोबडी इज गोइंग टू कम फॉर अ साइट विजिट टुडे बिकॉज नोबडी इज अवेलेबल टुडे, दे कैन ओनली मेक अ विजिट टुमारो इन द मॉर्निंग। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ का वेट क्यों करूँ, वाई शुड आई वेट एनी फर्दर। एंड ही सेड नहीं टेक्नीशियंस जो है वो 9:30 बजे तक रहते हैं। Imagine the kind of furiousness I had at that point of time. The very moment he said me कि नहीं टेक्नीशियन 9:30 बजे तक रहते हैं and they are on duty till 9:30 in the night. The next very thing that I said was that why are your other team members then saying कि शाम को टेक्नीशियंस विजिट नहीं कर सकते? They shouldn't, अगर उनको नहीं पता है then they should just simply say that I do not have any information about this, I will escalate your call to other team who happens to have this kind of not escalate, transfer your call to other team who happens to have this information. I was like these people are just blindly saying anything and everything. वो तो अच्छा है, आई वॉज वेरी एडमेंट ऑन द फैक्ट कि नहीं मेरे को तो ये मतलब कैसे भी करके आज सोल्यूशन निकालना है, वरना तो ये मैं तो इसी उसमें रह जाती कि हाँ नेक्स्ट डे का वो है, नेक्स्ट डे ही आएगा, उस दिन नहीं आएगा टेक्नीशियन। मतलब दीज पीपल डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती हैं इन लोगों के पास और ये कुछ भी चेप देते हैं। इन लोगों का ट्रेनिंग सिस्टम इतना पुअर है कि अपने एग्जीक्यूटिव्स को अच्छे से ट्रेन नहीं करते। इनफैक्ट सुपरवाइजर्स तक को ट्रेनिंग नहीं है इस चीज़ की, पता नहीं वो एग्जीक्यूटिव से सुपरवाइजर किस हिसाब से इन लोगों का असेसमेंट होता है, भगवान ही जानता है। आई ओ गॉड आई वाज सो फ्यूरियस एंड देन ही सेड मैम प्लीज़ आप 2 घंटे दे दीजिए, 9:30 बजे तक टेक्नीशियन की विजिट हो जाएगी, ब्ला 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 ब्ला। And I was like, ठीक है, I am only going to wait for 2 more hours. If he does not come in the next 2 hours, I am going to expect a disconnection and a refund. He was like, हाँ मैम अगर वो नहीं आया 2 घंटे में तो मैं कर दूंगा। I was like, okay. He didn't come. He literally didn't come because it was the same technician who had cut the call into my face. It was the same technician. तो he didn't come and I knew he was not gonna come because अगर वो पहले 3-4 दिन से नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट 2 घंटे में क्या ही आ जाएगा। आई न्यू ही वॉज नॉट गोना कम बट आई वाज लाइक चलो ठीक है, इफ दीज पीपल आर सेइंग सो मच देन लेट इट बी।
मैंने वो किया, उसके बाद में ही हैज़ नॉट कम। इनफैक्ट अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, सॉरी 9 बज रहे हैं, एंड अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है किसी भी चीज़ का कहीं से कहीं तक। एंड टुडे आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, क्योंकि संडे है आज, बट आई एम गोइंग टू कॉल दीज पीपल अप एंड आई एम गोइंग टू टेल कि भैया हो गया मेरा, अब आप डिस्कनेक्ट करो। यू गाइस टोल्ड मी कि 2 घंटे तक वेट करो और वो आ जाएगा, एंड आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आज रिजॉल्व हो जाएगा। ना कोई आया, ना मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ, बिना काम दिन पे दिन चढ़ते जा रहे हैं, अमाउंट कम होता जा रहा है, तुम लोग उस अमाउंट को खाते जा रहे हो, because that's what has happening. I would literally say that with all of this happening, Airtel is literally scamming their customers, and this needs to stop. I mean, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, बट जितने तक भी पहुंचती है, प्लीज गाइज डू नॉट ऑप्ट फॉर एयरटेल, फॉर हेवन्स सेक डू नॉट ऑप्ट फॉर इट, बिकॉज इट इज वन हेल ऑफ अ हेडेक, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। इतना ज़्यादा इन लोगों ने परेशान कर रखा है ना, जिसकी कोई हद नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ना ये कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, ना इनके टेक्नीशियंस आके विजिट कर रहे हैं, ना ये मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके मेरे को रिफंड कर रहे हैं। ये लोग कुछ करने को रेडी नहीं है, इनको बस हम लोगों की मेहनत का पैसा खाना है। दैट इज वॉट दीज पीपल हैव बीन डूइंग, एंड एयरटेल इज स्कैमिंग इट्स कस्टमर्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, पीरियड। इट इज हैपनिंग, पीरियड। सो मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना इस टाइम पे, और आज तो एयरटेल की टीम जो गजब सुनने वाली है मुझसे, ओ हो, क्योंकि मैंने वेट कर लिया। भैया मेरे तो दिन कम होते जा रहे हैं ना, मेरा तो अमाउंट घट रहा है मेरे अकाउंट में से, मतलब जो इनका एयरटेल जो रिचार्ज है उसमें से, तो मेरा तो अमाउंट घट रहा है ना उसमें से। मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है? बेनिफिट तो तुम उठा रहे हो उस अमाउंट का बेनिफिट ले लेके, है ना, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करके। मतलब सीरियसली यू गाइज हैव नो शेम इन स्कैमिंग पीपल एट ऑल। दिस इज लिटरल स्कैमिंग पीपल। मतलब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरा इज्जत से मैं बोल रही हूँ कि मेरा कनेक्शन जो है आप डिस्कनेक्ट कर दो, जितना भी पैसा बाकी बच रहा है। मैं तो ये भी नहीं बोल रही हूँ कि 4-5 दिन से जो नेट चल रहा है उसका भी पैसा मेरे को रिफंड करो, जो बाकी बच रहा है बस उतना सा रिफंड कर दो मेरे को। एंड इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, 2500 का अमाउंट है अभी, मतलब 2400 समथिंग। तो 2400 समथिंग इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जिसका पैसा जाता है ना उसको पता पड़ता है कि 100 रुपए की भी क्या कीमत होती है। ट्रस्ट मी, 100 रुपए क्या 1 रुपए की भी क्या कीमत होती है जिसका पैसा जाता है। तो इसलिए एयरटेल, इफ यू आर डूइंग दिस all of this nonsense with the intention of scamming people, trust me, karma is there. Karma is there and karma is going to bite you back like nobody's business. And now I'm just going to go downstairs. मैं पिछले 20 मिनट से बोल रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ बोलते बोलते, तो अब मैं बस बिंदी लगाऊंगी और नीचे जाऊंगी। So yeah. 1 hour later. चिकन बन रहा है, ये चिकन का मसाला रेडी हो रहा है, एंड चिकन को मेरे मैरिनेट करके उसमें रख दिया है। So this is what's happening. 2 hours later. Taking these clothes and going upstairs इन सबको सुखाने के लिए। It's 12:43 right now. उस पर अगर अलग दिखा होगा टाइम तो वो 5 मिनट आगे है, बट येस इट्स 12:43 राइट नाउ एंड आई एम फाइनली बैक इन टू माई रूम। थोड़ा लेट आज इसलिए हो गया बिकॉज यू गाइस सॉ कि चिकन बन रहा था, तो चिकन बनने में टाइम लगता है, एंड दैट इज़ वाई आई गॉट लेट इन कमिंग अपस्टेयर्स। और फिर 12:30 बजे तक वैसे मैं आ गई थी ऊपर, बट मैं क्या है बाहर कपड़े सुखा रही थी। आई एम नाउ गोइंग टू सिट एंड एडिट दिस व्लॉग, क्योंकि इसकी व्लॉग, ये वाली व्लॉग को मैंने एडिट करना भी चालू नहीं किया है, तो मुझे वो करना है। बाकी द हाउस हेल्प इज डूइंग हर वर्क एंड या 1 hour later. ये नेट का तो इशू ख़त्म ही नहीं हो रहा है हॉस्टल में, पता नहीं क्या है। तो अभी दिन के 1:40 हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ वापस हॉस्टल इनके साथ। खाना वगैरह हो गया है हमारा, एंड वहाँ पे थोड़ा देखने जा रहे हैं कि कैसे इशू को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि भाई साहब एयरटेल वाला आ गया था आज सुबह। मैं वापस से बहुत माथा खपाई हुई है इन लोगों के साथ। इनके अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग बातें करते हैं। मतलब कोई बोलता है हाँ पर रिफंड हो जाएगा, कोई बोलता है नहीं रिफंड होएगा, कोई बोलता है हाँ आपके पास जो है 9:30 बजे तक, रात के 9:30 बजे तक एक टेक्नीशियन आ जाएगा, कोई बोलता है कि नहीं इतने बजे तक तो टेक्नीशियन है ही नहीं। मतलब इनके खुद के इंटरनली ही इन लोगों की इतनी ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन है कि ये बिल्कुल कस्टमर्स को ऐसा बेरू बना रहे हैं ना जिसकी कोई हाथ नहीं है। पर अभी मैंने उसको फाइनली मतलब पहुँच गया था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा माथापच्ची उन लोगों से हुई, उसके बाद उन लोगों ने टेक्नीशियन टॉप प्रायोरिटी पे भेजा और नेट चालू कर दिया उन लोगों ने। अब मुझे क्या है एक्सटेंडर कॉन्फ़िगर करना है, तो लैपटॉप वहाँ पर ऑलरेडी इनका वाला रखा हुआ है, क्योंकि मेरे लैपटॉप में क्या है लैन केबल जाएगी नहीं क्योंकि पोर्ट नहीं है। इनके उस वाले में पोर्ट है,
तो कल हम लोग ऑलरेडी इनका लैपटॉप शाम को ले गए थे, तो वहीं छोड़ दिया था कि काम पड़ेगा वहाँ पे तो उसको वहीं रहने दो। तो अभी वो वहीं पर है, तो अभी मैं जा रही हूँ बस। हम लोग कहीं रुके हैं, सागर आइसक्रीम ला रहे हैं, ले आए हैं, बस दरवाज़ा खुलेगा भी गाड़ी का। सो बस अभी तो यही सीन है। फिर देखते हैं अब वहाँ पे कि एक्सटेंडर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, क्या उसका सीन रहता है। थैंक यू। आइसक्रीम इज़ योर। चलो अब चलते हैं, हॉस्टल चलते हैं। Later that same evening. बिल्कुल खुश है साहब। हमारा सरकार बन रहा है केंद्र में, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारे राम मोहन नायडू जी और पेम्मासानी चंद्रशेखर जी दोनों भी वहाँ पे मंत्री बन रहे हैं और एक अच्छा और बहुत स्ट्रांग सरकार बनने वाली है केंद्र में। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ब्रो प्रायोरिटीज। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति इसके लिए तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। What is this target? Like what is this target? 120 कौन बनाता है यार? The next morning. अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं एंड टुडे इज द 10th of June एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। मुझे बस ये लग रहा है अगर मैंने लास्ट नाइट 12:30 बजे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, मैं उठ के बैठ गई होती तो, क्योंकि मैं लेटी हुई थी ऑब्वियसली, पर मैं उठ के बैठ गई होती तो शायद जो लास्ट का थ्रिलर था मैच में वो मैं इंजॉय कर लेती। मेरे साथ पता नहीं क्यों हमेशा ही ऐसा होता है, पता है मैं कभी भी ऐसा, मुझे ना थ्रिलिंग वाले मैचेस देखने को ही नहीं मिलते, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। हमेशा कोई भी मैच खत्म हो जाएगा मैं सोचूंगी यार ये तो क्या ही टीम है, ये तो क्या ही मैच होएगा, एंड मैं उस टीम मतलब उस मैच को मैं नहीं देखूंगी एंड वो मैच सबसे थ्रिलिंग मैच हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आता मेरे को क्या मतलब भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है इस चीज़ को लेकर कि मेरे को थ्रिलिंग मैच देखने को ही नहीं मिलते ना। विद दिस 12:30 बजे तक मैंने सारे मैचेस देखे, मेरे को नींद आने लग गई बिकॉज येस्टरडे वाज अ वेरी इवेंटफुल डे। आई वाज फुल डे एट द हॉस्टल, बिल्कुल भी नहीं सोई मैं, मतलब दिन में बिल्कुल भी आराम वगैरह कुछ भी नहीं किया मैंने, ना लेटी मैं, तो कोई भी तरीके का आराम नहीं हुआ मेरा एंड इस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई रात को एंड देन आई स्लेप्ट ऑफ बाय, मतलब मुझे 12:30 बजे तक नींद आने लग गई। तो मैंने सोचा यार ये तो वैसे भी ये लोग तो हारने वाले, मैंने टीवी स्विच ऑफ किया और मैं सो गई। मेरी एकदम से 1:30 बजे नींद खुली है, वाज लाइक 1:30 बज रही है, मैच शायद से अभी तो खत्म हो गया होगा। आई ओपन हॉटस्टार एंड इट सेड दैट इंडिया वन बाय 6 रन्स एंड आई वाज लाइक अच्छा जीत गई। उसके बाद अभी मैं सुबह उठी हूँ एंड आई एम एक्चुअली सीइंग ऑल द इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड एवरीथिंग and I saw Jasprit Bumrah turned around the match, Hardik Pandya turned around the match and all of that, and I was like India-Pakistan match is entertainment pro max sorry, and all of that, and I'm like यार ये सारे थ्रिलिंग मैच मेरी किस्मत में क्यों नहीं होते। मतलब मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना, अभी मैं पता है आधे घंटे से बैठकर यही ढूंढ रही हूँ कि कहीं पे मेरे को फुल मैच देखने को मिल जाए ताकि मैं यू नो आई कैन ऑल्सो एंजॉय।
मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना कल रात का, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच इन अ वर्ल्ड कप, आई हैव मिस्ड इट बिग टाइम। क्योंकि जब तक मैं उस मैच को देख रही थी तब तक इंडिया के तो इतने बुरे हाल थे कि आई वाज लाइक यार भैया 120 का टारगेट है, इट इज़ हलवा एंड दे आर गोइंग। आई एक्चुअली ओवर एस्टिमेटेड फ्रॉम, आई डिड नॉट अंडर एस्टिमेट इंडिया and its bowler. I overestimated for Pakistan's team. मैं भूल गई कि ये लोग यूएस जैसी टीम से सुपर ओवर में हारे हैं। सुपर ओवर तक गया इनका मैच और सुपर ओवर में ये लोग यूएस जैसी टीम से हारे। आई फॉरगॉट अबाउट दैट। तो मैंने एक्चुअली पाकिस्तान की टीम का ओवर एस्टिमेट कर लिया था एंड नाउ आई एम रिग्रेटिंग इट बिग टाइम। बट येस, I am also going to end my vlog right here because that's it for this weekend, and I will see you guys in my next vlog. But if you like this vlog, please give it a thumbs up, comment down below and let me know how you enjoyed watching it. I would love to hear it from you guys. Share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please subscribe. Please, I'm struggling with the subscriptions, guys. Please subscribe to my channel. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be mentioned in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.